Hello guys, welcome to Mission CAPF Hub. In this video, we'll be looking at the questions of current affairs section of CDS 2021 exam. We'll be also looking at the analysis of this current affairs questions, and we'll also be planning our next strategy. If you are appearing for the next attempt of the CDS, then you must watch this video till the end. You will get to understand how to plan your current affairs strategy and what sources you should be using for getting the out of marks in the CDS current affairs section. So let us begin. तो एनालिसिस शुरू करते हैं पहले कि क्वेश्चंस कैसे आए थे एंड किस मंथ से आए थे. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दैट 20 आउट ऑफ 22 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस in the CDS second 2021 exam directly were asked from the Mission CAPF current affairs magazine, and we have also delivered in the CAPF 2021 exam, that is 15 out of 16 questions were from our magazine, and this is a grand achievement for our team because our team is working very hard, and it is our it is of utmost importance to us that we should only be delivering the relevant and concise content to you, because our magazine is only of the 28 to 30 pages, एंड हम कोशिश करते हैं इसमें कि दैट रिलेवेंट से रिलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए और कम से कम पेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले. एंड हमें ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चैनल पे हमने ये स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए थे. तो यू कैन बाय दिस मैगजीन फ्रॉम आवर वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस. नाउ लेट अस बिगिन विथ आवर एनालिसिस दैट CDS 2021 के जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था उसमें मंथ वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें तो जुलाई 2021 में 9 क्वेश्चंस पूछे थे जुलाई 2021 मंथ से, एंड जून 2021 से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं, एंड अगस्त 2021 से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं, मार्च 2021 से 1 क्वेश्चन है, सितंबर 2020 से 1 क्वेश्चन है, एंड अक्टूबर 2020 से 1 क्वेश्चन है. तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द सितंबर 2021 एंड अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स मंथ्स. अभी आपको क्या करना है कि दैट यू हैव टू रीड the 8 to 9 months of the current affairs prior to the exam date. 8 to 9 months of the current affairs आपको पढ़ना है एग्जाम डेट के पहले वाला, एंड आपको ये रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स. हमारा अगर आप मैगजीन आप परचेज करते हो और उसको रीड करते हो तो यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनी अदर सोर्स, बिकॉज इट इज़ आवर पर्सनल गारंटी दैट यू विल गेट टू सी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स मैगजीन. अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से 15 प्लस questions will definitely be from our magazine. That is our personal assurance to you. So reading of 1 year current affairs section for the CDS is important. Like 1 year तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, but you can read for 8 to 9 months of the current affairs prior to the exam date. So it would be enough to read 8 to 9 months of the current affairs. And the nature of the question that was asked in the CDS exam current affairs section was there are certain questions which are tricky and which need multiple revisions to get them correct. The level of question in CDS current affairs section is easy to medium. It is not that difficult. Okay, so you have very high cost to benefit ratio to get maximum marks, because if you are able to get 20 out of 15 or 16 plus questions correct, then you would definitely get an edge over others, and you will be able to easily crack the CDS exam. Now we have delivered a 20 current affairs question from our magazine, and we have given the proof link here. We will also be giving this proof link in the description. The link to download this magazine is missioncapf.com/magazine. Now let us begin with our first question. Who among the following was chosen for the Kuempu Award 2020? Now the Dr. Rajendra Kishore Panda was chosen for this Kuempu Award 2020. We have this Kuempu Rashtriya Puraskar 2020, which was awarded to Odia poet Rajendra Kishore Panda. We have covered this in our magazine of July 2021. Here you can see that in July 2021 magazine, on page number 3, you will see this category of awards, medals, honors and prize. In that section we have covered Kuempu Rashtriya Puraskar 2020, and it was awarded to Rajendra Kishore Panda. Now let us see the next question. It is about Avni Likra. As we all know, she is she has won medals in the Paralympics, and
the question is asking that Avni Lekra became the first Indian woman to win 2 Paralympics medals at the Tokyo Paralympics 2020. Which one of the following was her discipline? So ये किस कैटेगरी से उन्होंने ये अवनी लेखरा जी ने मेडल जीता है? तो शूटिंग की कैटेगरी से जीता है. हमने ये कवर किया है अगस्त 2021 के मैगजीन में. आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इंडिया सुमित अंतिल हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द मेन्स जैवलिन थ्रो F64 फाइनल, एंड second, shooter Avni Lekra has scripted history as she became the first Indian woman to win gold medal. She also won bronze. So she has won the 2 medals and she has done this in the shooting category. Let us move ahead and let us see the next question. Now it has asked me about the Bagram Air Base. So what is the background to this question is that US was exiting from the Afghanistan, and that is why in that context this question is asked. Now the Bagram Air Base was oftenly in news बिकॉज तालिबान वॉज टेकिंग ओवर द अफगानिस्तान. तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे अभी, और यूएस वहाँ से जा रहा था अपना सारा प्लेन्स वगैरह लेके और सब आर्मी जो कुछ भी उनका आर्म्ड फोर्स है वो सब लेके जा रहा था यूएस. एट द टाइम दिस बगरम एयरबेस वॉज इन न्यूज़. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 2021 के मंथ में हमने ये कवर किया है. यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैज़ लेफ्ट अफगानिस्तान बगरम एयरफील्ड after nearly 2 decades. Bagram Airfield is also known as Bagram Air Base and it is located near ancient city of Bagram. Bagram एक सिटी है ancient, वहाँ पे ये Bagram एयर बेस था यहाँ पे यूएस का. तो यहाँ पे ये यूएस छोड़ के निकल गया है. तो आगे देखते हैं. Pinaka developed in India is what? So it is a multi-barrel rocket launcher. We have covered this in our magazine. आप यहाँ पे देख सकते हो मैगजीन का स्क्रीनशॉट दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 पिनाका रेजिमेंट्स. पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम. इट हैज़ बिन इंडिजियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय दी नन अदर दैन DRDO. DRDO ने इसे इंडिजियसली डिज़ाइन किया है. एंड व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. वी हैव गिवन हियर दैट पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम. सो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका. तो आगे देखते हैं. इतते द्वार. So what is this Itate Dwar? It is an e-filing portal of the Income Tax Appellate Tribunal. Here you can see that we have given this an e-filing portal of the Income Tax Appellate Tribunal launched by the Law Minister Shri Ravi Shankar Prasad. Portal will enable online filing of appeals, application documents etc. by various parties. आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने. What is the range capability of Agni-P missile? Agni-P missile एक different category है guys. Agni-P का आपको रेंज पता होना चाहिए. अग्नि-P एक डिफरेंट कैटेगरी है और अग्नि-P का रेंज जो है 1000 to 2000 किलोमीटर है इसका रेंज. अग्नि-P एक नई कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है. तो अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी रेंज जो है 1000 to 2000 किलोमीटर है. नाउ दिस इज़ अ न्यू जनरेशन अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल एंड DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड दिस न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल from the APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha in Balasore. Now you must be knowing that APJ Abdul Kalam Island is also known as Wheeler Island. इसको Wheeler Island भी बोला जाता है. Now this Agni-P की रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर. हमने ये कवर किया है जून 2021 के मैगजीन में. आगे देखते हैं. Which one of the following Indian states has recently declared itself as the first rabies free state in India? Now अगर किसी भी स्टेट में अगर 3 साल तक कोई रेबीज़ का केस देखा नहीं जाता, एट दैट टाइम दैट स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए रेबीज़ फ्री स्टेट. सो ये पहला स्टेट है गोवा जैसा जहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में कोई भी केस देखा नहीं गया था रेबीज़ का, इसलिए इसको रेबीज़ फ्री स्टेट ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है. आगे देखते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज़ अ पार्ट ऑफ इट. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि ये पहले जो हुआ करता था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में हुआ करता था. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हुआ करता था. नाउ इट इज़ इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अभी आगे देखते हैं. हमने ये कवर किया है हमारे मैगजीन में जुलाई 21 के. द गवर्नमेंट हैज़ मर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस विद फाइनेंस मिनिस्ट्री टू गिव इट अ बेटर कंट्रोल ओवर स्टेट ओन्ड फर्म्स एंड फैसिलिटेट इट्स एम्बिशियस प्राइवेटाइजेशन. द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज and public enterprises will now be called as the Ministry of Heavy Industries. Now the Heavy Industries Ministry will continue to be administrative ministry related primarily to the capital goods sector. यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को कहाँ पे मर्ज कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मर्ज कर दिया है. आपको याद रखना है. और इसकी पहले वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी, ओरिजिनल मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज थी. ये अभी अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है तो अभी दूसरे कौन से भी एग्जाम्स है
वहाँ पे भी इसको ये उठा के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप दूसरा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वही वहाँ पे इस क्वेश्चन की यूटिलिटी आपको हो सकती है। एंड अगर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो सिविल सर्विसेज का, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको अगर करंट अफेयर्स बाय करने हैं या डिस्काउंट चाहिए करंट अफेयर्स पे, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7057227225। एंड वी हैव आवर वेबसाइट missioncapfhub.com from where you can directly purchase this magazine. We also have these initiatives: NCERT test series, comprehensive test series, Yalgar daily answer writing program, CAPF plus mentorship, current affairs magazines, and paper to test series for the CAPF exam. So you can contact us on this number, or you can just reach out to us on our website. So let us begin with the next question. Now this president Jovenel Moise, who was assassinated recently, was the president of which one of the following countries? यहाँ पे पूछा है कि that Jovenel Moise किस कंट्री के प्रेसिडेंट है जिनका अभी अभी असैसिनेशन हुआ है। तो वो हैती के प्रेसिडेंट है। हमने ये कवर किया है जुलाई 2021 की मैगजीन में। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती, द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइज़ी, ये हमने कवर किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वाज फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज बीइंग हेडेड बाय अमित शाह जी। तो यहाँ पे हमने दिया है कि दैट जुलाई 2021 के मैगजीन में क्रिएशन ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, द गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे मिनिस्ट्री टिल डेट ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट था। नाउ दिस मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। एंड इट इज़ बीइंग हेडेड बाय अमित शाह। कौन है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर? तो अमित शाह जी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO? WHO ने किसको अवॉर्ड किया है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन? तो ये चाइना को अवॉर्ड किया है, आपको याद रखना है। दूसरे किसी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है दैट चाइना को मलेरिया फ्री स्टेटस WHO ने दिया है। चाइना वॉज सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय द WHO आफ्टर 70 ईयर एफर्ट ऑफ इरेडिकेटिंग दिस मस्कीटो बॉर्न डिसीज। ये ट्रॉपिकल रीजन जो भी होता है, जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे मलेरिया का बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पे चाइना ने 70 ईयर एफर्ट्स लेके मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया है, इसलिए WHO ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है दैट चाइना इज़ मलेरिया फ्री। नाउ रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वॉज फॉर्म, ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑनर्ड विद गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020? तो गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू शेख मुजीबुर रहमान एंड काबूस बिन सैयद अल सैयद। इनको क्या किया गया है दैट 2019 का जो प्राइज़ है, 2019 का गांधी पीस प्राइज जो है ये इनको दिया गया है, बट 2020 का जो है वो शेख मुजीबुर रहमान इनको दिया गया है। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज बंगबंधु। Gandhi Peace Prize 2020 conferred on Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman was the president, also became the prime minister of Bangladesh. He is called as the father of the nation. And Gandhi Peace Prize conferred on late His Majesty Sultan Qaboos bin Said Al Said. तो ये 2019 का जो प्राइज़ है गांधी पीस प्राइज़, इसको दिया गया है मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन अल सैद ऑफ ओमान। एंड 2020 का जो प्राइज़ है वो शेख मुजीबुर रहमान जी को दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई धोलावीरा वॉज इन न्यूज़? वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज। इट रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ये आंसर है इसका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है इसको। यहाँ पे इंडिया में टोटल अभी 40 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। धोलावीरा इन गुजरात ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी देश में है तो वो इटली में है, उसके बाद है चाइना में। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस स्टेट में है इंडिया के? तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये साइट्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया? इट इज़ द ड्यूरांड कप। ड्यूरांड कप ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ये कवर किया है अगस्त 2021 के मैगजीन में। द 131st ड्यूरांड कप, world's third oldest and Asia's oldest football tournament called the Durand Cup it's said to be held in Kolkata from September। तो ये कोलकाता में हो रहा था, इसलिए इसको पूछा है। World's third oldest and Asia's oldest football tournament called the Durand Cup is to be held in Kolkata from September।
ओके, सो इसलिए इसको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रशियन फेडरेशन पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो रशियन फेडरेशन जो है इसने टोक्यो ओलंपिक्स में रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से पार्टिसिपेट किया है। इनको क्यों रशिया को अलाउ नहीं किया गया? बिकॉज सब्सटेंस अब्यूज़ किया था इन्होंने, ड्रग्स वगैरह लिए थे कुछ प्लेयर्स ने इनके, इसलिए इनको बैन कर दिया गया था और इसीलिए उन्होंने रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाउ यहाँ पे रशियन ओलंपिक कमेटी के एक प्लेयर थे झाउर उगुएव, उससे हमारे रवि कुमार दहिया हार गए थे एंड इनको सिल्वर मेडल मिल गया था। गोल्ड इनका इसीलिए चला गया कि दैट ये जो रशियन ओलंपिक कमेटी के एक प्लेयर ने इनको हराया था। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, दैट इज़ ऑयल पाम। यहाँ पे NMEOP, ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, इसका जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा एंड ऑयल पाम जो है वहाँ पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको अनाउंस किया है नेशनल मिशन, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 11,000 करोड़ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज़्यादा है और ये 11,000 करोड़ जो है 5 ईयर्स में हमको स्पेंड करना है एंड हम सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ रिलायंट इन एडिबल ऑयल बनना है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इंपोर्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्च होता है एंड कुछ फैक्ट्स है ऐसे इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड इट इज़ a base ingredient for cooking most common dishes and meets up 2/3 of its domestic demand through imports। यानी कि 66% जो हमारी ऑयल डिमांड मीट हो रही है वो इंपोर्ट से मीट हो रही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अराउंड 33% ही हमारा जो है इंडिजिनस प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एंड बाकी का 66% जो है हम पूरा का पूरा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमको कॉस्टिंग इट अप टू 10 बिलियन एनुअली, 10 बिलियन तक हमको कॉस्ट कर रहा है एनुअली को। तो इसलिए हमने ये ऑयल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। कौन सी 2 cities है ऐसी? मनाली टू लेह। मनाली एंड लेह में ये अटल टनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने कवर किया है मैगजीन में। PM मोदी डेडिकेटेड अटल टनल टू द नेशन। अटल टनल इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल हाईवे टनल है, अबाउट 10,000 फीट है ये अटल टनल। यहाँ पे 10,000 फीट, अबाउट 10,000 फीट है एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट है। तो अटल टनल हैज़ बीन बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द रोहतंग पास इन ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस ऑन द लेह मनाली हाईवे। तो हमने यहाँ पे दिया है इन हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि गोवा एक रेबीज फ्री स्टेट बन गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि ये इंडियन ओरिजिन के जो एस्ट्रोनॉट्स है ये स्पेस में कब फ्लाई किया है। तो पहले आपको देखना है इसमें से राकेश शर्मा, शिरीषा बंदाला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो हमको पता है कि राकेश शर्मा का हम जब इंदिरा गांधी के टाइम में राकेश शर्मा जी ने फ्लाई किया था, तो राकेश शर्मा पहले ही आएंगे, उसके बाद आएंगी कल्पना चावला, इनकी जो है एक्सीडेंट में डेथ हुई थी एंड उसके बाद आएंगे हमारे सुनीता विलियम्स एंड उसके बाद अभी अभी शिरीषा बंदाला ये गई थी, इसलिए इनका भी यहाँ पे नाम आया है। तो आगे यहाँ पे देख रहे हैं हम। रिचर्ड ब्रांसन टेक्स ऑफ फर्स्ट इन स्पेस टूरिज्म रेस। मिस्टर ब्रांसन एंड 5 क्रूमेट्स इंक्लूडिंग एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बंदाला फ्रॉम वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी। ये जो रिचर्ड ब्रांसन है ना, इन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी। यहाँ पे उन्होंने 88 किलोमीटर्स तक रीच किया था स्पेस में जाके न्यू मैक्सिको डेजर्ट में एंड मिस्टर ब्रांसन बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ब्लास्ट ऑफ इन हिज ओन स्पेसशिप। तो हम उनकी खुद की स्पेसशिप में वो ब्रांसन ने फ्लाई कर लिया था और उनके साथ ये शिरीषा बंदाला भी थी। तो क्रूमेट्स थी वो मिस्टर ब्रांसन की, इसलिए ये हमको यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। तो यही ऑर्डर है 2413। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है शिरीषा बंदाला है, इंडियन ओरिजिन है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट टू परचेज द मैगजीन, हमने यहाँ पे नंबर भी दिया है दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर
7057 2272 25. Thank you for watching video till the end.